Welcome back to political science classes, everyone. Before we move forward, let's take a little bit of stock taking. So, we've just finished this part of the syllabus, that is nature and major approaches, political economy and political sociology perspective. हमने इसके beyond political development, political culture and all that वो सारे अप्रोचेस भी की. एंड देन लिमिटेशंस ऑफ द कंपैरेटिव मेथड्स, हमने सभी मेथड्स की लिमिटेशंस भी हम देखते रहे. जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल इकोनॉमी की क्या लिमिटेशन थी कि द पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट वर कंपेयरिंग द ओनली द इकोनॉमी ऑफ टू पॉलिटिकल सिस्टम वेयर इन a political system has a lot more to it than just the economy. Similarly, political sociology approach had a problem that at the end of the day it stops being the political approach anymore, and then Theda Skocpol had to say that bring the state back. That is, we are political scientists, we are supposed to study topics like power, state and issues like this, and not religion, caste, culture, pressure group, things like this. So we are done with this part of the syllabus. In this video we are going to start this topic, that is state in comparative politics, its characteristics and how state, the nature of state in capitalist and socialist economies and developing societies and so on. Okay, after this we are left with two more topics. One is politics of representation and participation. When we were doing paper 1 part 2, at that time I did not cover political parties and pressure group. I told you that we will cover it here along with the basic theory of pressure groups and political parties. And last but not the least, we are going to cover globalization, and that will wind up our syllabus and will be left with uh, only one part, that is theory. Once we cover the theory, and then we will have the theories of IR. So in order to cover theories of IR, we must understand theories, like the basics of theory. So after globalization we will move on to the theory part. So this is it, we are pretty much there. So let's start. Characteristics and changing nature of state in capitalist society. We are going to cover this whole topic, this this number 2. We are going to cover this whole topic in this one lecture only. Okay, there are not going to be multiple videos. Okay, so let's start. First of all, characteristics and changing nature of state in capitalist society. Now if we look at political science is all about the study of state, right? तो मतलब सरकार के अराउंड ही तो है सब कुछ, ठीक है. Political science begins with state, it ends with state. But now the question is, what is state? ये बड़ा कंटेस्टेड सब्जेक्ट रहा है. ये तो बात ठीक है कि स्टेट के अराउंड है पॉलिटिकल साइंस, पर स्टेट खुद क्या है? इट हैज़ बीन अ वेरी कंटेस्टेड सब्जेक्ट. ओके, सो शुरू से, और आज से नहीं, शुरू से ही कोई बोल रहा है स्टेट इज एन इंडिविजुअल रिट लार्ज. यू रिमेंबर हु सेड सो? ओके, कोई बोल रहा है स्टेट इज अ नेसेसरी इवल, ठीक है. कोई बोल रहा है स्टेट इज लेवाइथन, कोई बोल रहा है कि स्टेट इज अ न्यूट्रल आर्बिटर. स्टेट है क्या, सरकार है क्या, इस पे अपने को बहुत कंटेस्टिंग क्लेम्स रहे हैं, ठीक है. तो अगर हमने देखना है पर्सपेक्टिव टू एनालाइज स्टेट इन कैपिटल सोसाइटीज, तो हमारे पास में कुछ पर्सपेक्टिव हैं जो हम इस वीडियो में करेंगे. पहला आता है हमारे पास लिबरल पर्सपेक्टिव, सेकंड वन इज मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, थर्ड दैट वी विल कवर वुड बी एलिटिस्ट पर्सपेक्टिव, फोर्थ द प्लूरलिस्ट पर्सपेक्टिव. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द लिबरल पर्सपेक्टिव. लिबरल आपको आइडिया है, वो जो बोलते हैं जिनका कोर आइडिया क्या है? लिबर्टी, ठीक. तो लेट्स स्टार्ट लिबरल पर्सपेक्टिव. लिबरल क्या बोलते हैं कि स्टेट इज अ न्यूट्रल आर्बिटर ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट. ये इसको समझने के लिए लेट्स गो बैक टू दैट थिंग वी डिड इन डिटेल. John Locke. Remember what John Locke said? That even in the state of nature, people were living, rather okayish, and there was. It's not like the state of nature was not a war of all against all the time. उसने बोला था कि कभी कभी थोड़े बहुत दिक्कत हो जाती थी, और उन दिक्कतों को, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए we needed a state, and hence we came up with this idea. So according to liberal, state is a neutral arbiter of conflicting interest. It is a product of will of people. State of nature में लोग रह रहे थे, बहुत परेशान थे, उनको लगा कि आओ एक काम करते हैं, हम एक
बॉडी बनाते हैं। वो बॉडी क्या करेगी कि जिस समय हमारे बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, सो इट विल एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी, जस्टिस क्रिएट किया जाएगा। ठीक, अब लिबरल्स के हिसाब से स्टेट कितनी होनी चाहिए, वो दे यूज्ड टू से, लाइक आई सेड, एडम स्मिथ बोलता था कि या सभी उस समय के, कि स्टेट क्या है, स्टेट इज अ नेसेसरी इविल। आइडियली लिबरल्स के हिसाब से सरकार कम से कम होनी चाहिए। ठीक, कभी कभार जो वो ज़रूरत पड़ जाती है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, वो बेयर मिनिमम काम जो एक इंडिविजुअल नहीं कर सकता, उन कामों के लिए अपने को सरकार चाहिए। तो मिनिमल स्टेट, ठीक है, या पुलिस स्टेट का मतलब क्या है यहाँ पे, कि सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। 1930s तक अपने को यही लगता रहा लिबरल्स को कि बाकी जो आपकी नीड्स हैं वो मार्केट कैन टेक केयर ऑफ इट। कोई बीमार है तो कोई डॉक्टर है, ठीक, तो एक प्राइवेट डॉक्टर होगा, लोग होंगे जो बीमार होंगे वो उसके पास जाएंगे और डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से सब चीज़ें सॉल्व होती रहेंगी। ये लोगों ने ट्रैवल करना है और कोई इंडस्ट्रियलिस्ट गाड़ी बना देगा, कोई तांगा चला लेगा और उससे उनका डिमांड एंड सप्लाई विल टेक केयर ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन एंड सो ऑन। बट 1930s के बाद, ग्रेट डिप्रेशन के बाद, लिबरल्स को भी लगा कि ना, ये थोड़ा सा कम हो जाता है, अपने को कभी कभी सरकार की ज़रूरत पड़ती है। सरकार की ज़रूरत किस लिए पड़ती है, बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए, कि बेसिक हेल्थ, बेसिक एजुकेशन। यहाँ से आइडिया स्टार्ट हुआ एक स्कूल ऑफ थॉट विद इन लिबरल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेलफेयर स्टेट। आज तकरीबन सभी स्टेट्स वेलफेयर स्टेट्स ही तो हैं। स्टेट्स क्या कर रही हैं, मैक्सिमम स्टेट्स क्या करती हैं, आपको इंडिपेंडेंस देती हैं, फ्रीडम देती हैं, प्राइवेटाइजेशन is allowed to a great extent, and then state plays its part, as a welfare, as a body which ensures welfare of the general public through public education, through public health, through public transport and so on। ठीक, तो ये हमारा था लिबरल पर्सपेक्टिव। इसमें अगर आपको, आई होप, कोई डाउट नहीं होगा। तो अगर आपको आता है कि लिबरल्स का स्टेट को लेके क्या पर्सपेक्टिव है, तो इट्स अ न्यूट्रल आर्बिटर एंड इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ विल ऑफ पीपल। सेकंड हमारे पास आते हैं मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। नाउ इसको हम बहुत डिटेल में बहुत बार कर चुके हैं। मार्क्सिस्ट के जो पर्सपेक्टिव में आप लिख के आओगे वो लिख के आओगे कि स्टेट क्या है, सरकार क्या है, इट्स अ क्लास इंस्टीट्यूशन। व्हाट डज दैट मीन? ठीक, इसको करने से पहले हम देखें कि मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव भी दो भाग में डिवाइड है, टू पार्ट्स में, लाइक वी हैव डन इट अर्लियर। One school is called instrumentalist and another is called the relative autonomy or structuralist. Instrumentalist, जैसे कि Karl Marx himself, what did he say? He said कि state is an executive committee of bourgeois class। मतलब जो अमीर लोग हैं, बहुत अमीर लोग, उन्होंने पॉलिसी बनाने के लिए एक एग्जीक्यूटिव कमेटी रखी हुई है सरकार, बस। तो कार्ल मार्क्स का वी ऑल नो कि ही हैड दिस इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म के नज़रिए से वो चीज़ों को देखते थे कि या तो आप रूलिंग क्लास के हो, या आप रूल्ड क्लास के हो, या आप बुर्जुआ क्लास के हो, या आप प्रोलेटेरिया क्लास के हो। और सरकार को, रिलीजन को, चर्च को, एजुकेशन को, मीडिया को, इन सब को कौन कंट्रोल करता है? वो जो इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। ठीक, तो उन्होंने यही बोला था कि यही सब जितने भी हैं, ऑल दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द बुर्जुआ क्लास। तो स्टेट इज नॉट एनी एक्सेप्शन आइदर। उसके बाद में ये राल्फ मिलीबैंड, ठीक है, इवन ही एनालाइज द नेचर ऑफ स्टेट इन पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटीज एंड अकॉर्डिंग टू हिम इवन द वेलफेयर स्टेट रिमेन्स द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास। ओके, ये क्या बोलते हैं, कहते हैं कि इवन जो सो कॉल्ड वेलफेयर स्टेट है ना, जैसे इंडिया, जो क्या कर रहा है कि वेल, इंडिया इज नॉट लाइक, इन राल्फ मिलीबैंड के केस में अच्छा एग्जांपल नहीं है। लेट्स टेक यूके, कि जो क्या कर रहा है, लोगों को फ्री एजुकेशन दे रहा है, एनएचएस है, वहाँ पे हेल्थ बहुत सस्ती है, वो सब। वो कहते हैं कि इवन उनमें भी अगर आप देखोगे तो इवेंचुअली पॉलिसीज किसको देख के बनाई जा रही हैं, रिचर्ड ब्रैनसन्स ऑफ द वर्ल्ड को देख के बनाई जाती हैं, जो वर्जिन अटलांटिक वाला है। और उस तरह के जो बड़े बड़े बुर्जुआ क्लास है, पॉलिसीज उन्हीं के हिसाब से बनती हैं जैसा वो बताते हैं। ठीक, सो इकोनॉमिक पावर रिमेन्स कॉन्सेंट्रेटेड वहाँ पे भी, इवन इन द वेलफेयर स्टेट। कुछ लोग बहुत अमीर हैं और उन्हीं के पास में सारी इकोनॉमिक पावर है, और जिसके पास में, द वन हु कंट्रोल्स इकोनॉमिक पावर ऑल्सो कंट्रोल्स द पॉलिटिकल पावर। दूसरे हमारे पास में जर्मन स्कॉलर है हेबरमास।
इसको भी सोशियोलॉजी में बहुत पढ़ते हैं, हमें ज़रा मेंशन करके आना है। ये भी क्या बोलते हैं, ही प्रिडिक्टेड कि जो वेलफेयर स्टेट है ना, सो कॉल्ड, जो आजकल अपने आप को बोलते हैं कि देखो हम तो फ्री हेल्थ एजुकेशन ये सब भी दे रहे हैं एंड वी आर नॉट अ टिपिकल कैपिटलिस्ट सोसाइटी, कहते इवन they will have legitimation crisis very soon. What is the legitimation crisis? When people kind of don't have faith in the authority, when you don't have faith in the institutions or the leadership, यहाँ पे whoever is controlling उस पे ही अगर आपको सवाल उठने लग जाए तो legitimation crisis है। इसका एक जैसे नॉन इकोनॉमिक एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो मुकेश अंबानी का अभी यूनिवर्सिटी बनी भी नहीं और उसको अगर इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में डिक्लेयर कर देता है, तो डोंट यू थिंक कि उसकी लिजिटिमेसी पे क्वेश्चन मार्क उठ जाता है कि यार ये सरकार, मतलब मुकेश अंबानी का जो मन करेगा वो करवा लेगा, इनका मन करेगा तो ये अपने घर को पार्लियामेंट भी डिक्लेयर करवा ले। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, लाइक आई एम एग्जैजरेटिंग ऑफ कोर्स, बट द पॉइंट इज दैट और लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। जैसे अभी लगा लो रिसेंटली यूके में कोरोना वायरस के केसेस आ गए बहुत ज़्यादा, आज से महीने पहले, ऑलमोस्ट 25-30 दिन पहले। बट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम यूके ने और यूएसए ने भी क्या पॉलिसी बना के रखी कि हम एक काम करते हैं, लेट्स नॉट स्टॉप द इकोनॉमी, लेट्स जस्ट पोस्टपोन द whole lockdown. In fact, for the longest time, they even thought that herd immunity may serve the purpose. ये क्या है, क्राइसिस के टाइम पे भी अगर आप सोच रहे हो कि यार हम किस तरह से इकोनॉमी बचा लें, तो वो जो आइडिया है ना, उससे लिजिटिमाइजेशन क्राइसिस हो जाते हैं किसी सो कॉल्ड वेलफेयर स्टेट को भी। दूसरे आते हैं मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव में, स्ट्रक्चरलिस्ट पर्सपेक्टिव। ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि नॉर्मल टाइम्स में, यू नो अबाउट स्ट्रक्चरलिस्ट नाउ ऑलरेडी बिकॉज आई मेंशन्ड इट एट डिफरेंट प्लेसेस। ये बोलते हैं कि नॉर्मल टाइम्स में तो state acts as if it enjoys some sort of relative autonomy. Okay, in certain situations, state ceases to be an instrument of the dominant class. Okay, but जब कभी वो होता है, टाइम ऑफ क्राइसिस होता है, थोड़ी टेंशन होती है, तब क्या होता है, देन स्टेट स्टार्ट्स एक्टिंग लाइक द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डोमिनेंट क्लास, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द बुर्जुआ क्लास। तो इनमें जो स्ट्रक्चरलिस्ट हैं और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं, इनमें क्या डिफरेंस लेगा आपको, कि जो स्ट्रक्चरलिस्ट हैं वो है दोनों मार्क्सिस्ट है। स्ट्रक्चरलिस्ट ये मानते हैं कि नॉर्मल टाइम्स में तो स्टेट एक ऐसा इंप्रेशन लेके चल देती है कि नहीं नहीं ये सबके साथ में है, सबका साथ सबका विकास। जिस समय सिचुएशन खराब होती है उस दिन ऐसा होता है कि स्टेट goes on to support the dominant class and doesn't care about the ruled class. इसका एग्जाम्पल आई हैव गिवन दैट एग्जाम्पल बिफोर, आई कैन गिव दैट अगेन। यूएसए में रिसेशन आता है बिकॉज ऑफ बैड बैंकिंग प्रैक्टिसेस, सब प्राइम क्राइसिस, एंड हाउ डज यूएसए's गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड्स, USA bails out the wrongdoer bankers and the banking firms। यूएस बड़े बड़े बैंकर्स को बोनस दे के लेके वो जा रहे हैं, और वो लोग, आम लोग जो परेशान हुए उससे, जिनके इतने इकोनॉमिक लॉसेस हो गए पर वो गरीब लोग थे, when they go and they protest, they say occupy wall street and all these kind of movements जब चलती हैं, येलो वेस्ट मूवमेंट्स, तो क्या होता है, सरकारें उनके ऊपर लाठियां चलाती हैं, उनकी पिटाई करती है। ठीक, सरकार सपोर्ट करने लग जाती है क्राइसिस के टाइम पे इनको, डोमिनेंट क्लास को। इसमें ना एक स्कॉलर है, ग्रीक स्कॉलर है, उनका आपने नाम याद रखना है, हिज नेम इज पोलांजास। ऐसा लगता है जैसे गॉडफादर की मूवी का कोई कैरेक्टर हो। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू पोलांजा होता क्या है कि जो लेट्स से कि डेमोक्रेसीज में अदरवाइज, या कोई भी कंट्री जहाँ पे मल्टीपल पार्टीज हैं, वहाँ पे क्या होगा, देयर इज गोइंग टू बी अ कंपेटिटिव पार्टी सिस्टम। नॉर्मल सिचुएशन में स्टेट सीजेस टू बी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पर्टिकुलर क्लास। जैसे कि मान लो आज की डेट में ऐसा हो गया कि बीजेपी के पास में रूलिंग क्लास में है बीजेपी, और आज उसको कॉल लेनी है कि कोई ऐसी पॉलिसी लाई जाए जो अंबानीज एंड अदानीज ऑफ द वर्ल्ड की फेवर में है, कि ऐसी लाई जाए जो गरीब आदमी की फेवर में है। तो उसको ना बड़ा न्यूट्रल होके वो एक्ट करेंगे। वाई?
क्योंकि इसको समझना थोड़ा सा कि नॉर्मल सिचुएशन में रिलेटिव ऑटोनॉमी है स्टेट की, कि अगर नॉर्मल पॉलिसी आ रही है एंड they have to think that should we go for something that will favor Ambanis and Adanis, or should we go for something that will favor the proletariat class, then state will exercise relative autonomy. Why? Because अगर मान लो वो अंबानी की फेवर करते हैं invariably, then the competing political party will make it an election issue and will come to power. So इस वजह से ऐसा हो गया कि स्टेट को अपनी ऑटोनॉमी एक्सरसाइज करनी है, बट इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस स्टेट विल सपोर्ट द बुर्जुआ क्लास. अगर कल को अगर ऐसा हो गया कि कांग्रेस की सरकार आ गई तो वो भी ऐसा ही करेगी. नॉर्मल टाइम्स में इट मे फेवर द बुर्जुआ क्लास, इट मे फेवर द प्रोलेटेरिया क्लास, बिकॉज अगर वो हमेशा बुर्जुआ क्लास की फेवर करेगी तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कैन मेक इट अ पॉलिटिकल इशू. बट अगर क्राइसिस की सिचुएशन आ गई तो फिर कांग्रेस पार्टी भी बुर्जुआ क्लास को ही सपोर्ट करेगी. इसका एक बेसिक सा एग्जांपल यही है ना. ऐसा थोड़ी था कि जितने भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फ्रॉम अंबानी टू अदानी टू जो भी, ऐसा थोड़ी था कि 2014 तक ना ये सब करियाना की दुकान खोल के बैठे थे और 14 के बाद में एकदम से मुकेश अंबानी बन गया. वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अंबानी 2014 में भी अंबानी ही था, वो 20 में भी या 15 में भी अंबानी है. तो चाहे कांग्रेस आई चाहे बीजेपी आए, ठीक, मार्क्सिस्ट के हिसाब से पॉलिसीज तो इन लोगों के हिसाब से ही बनती है, बिकॉज स्टेट इज नथिंग बट देयर इंस्ट्रूमेंट. ठीक, तो आई होप यू कुड अंडरस्टैंड द लिबरल पर्सपेक्टिव, आई होप यू कुड अंडरस्टैंड द मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव. नाउ नेक्स्ट इज, दो छोटे छोटे पर्सपेक्टिव हमने और करने हैं. एक है एलिटिस्ट पर्सपेक्टिव और दूसरा है प्लूरलिस्ट पर्सपेक्टिव. एलिटिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है? ये बोलते हैं कि यार स्टेट और पावर इट लाइज इन द हैंड्स ऑफ सम एलीट ग्रुप्स. इसके एक मेन थिंकर हैं जिनका नाम है सी राइट मिल. ओके, सी राइट मिल, एक हमने जेम्स मिल किया था पहले, याद है? जेएस मिल किया था, जेम्स मिल, जेएस मिल. अब ये सी राइट मिल अलग है. ही हैज एनालाइज्ड द डेमोक्रेसी इन यूएसए एंड ही हेल्ड दैट द पावर लाइज विद 3 मेजर ग्रुप्स. कौन से वो 3 ग्रुप्स हैं? कॉर्पोरेट ग्रुप, फेडरल पॉलिटिशियन एंड टॉप मिलिट्री लीडर्स. कैसे? अब ये बोलते हैं कि आप देख लो हमारे यहाँ पे यूएसए में, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, यूएसए में पब्लिक ट्रांसपोर्ट वीक है, अनलाइक यूरोप. यूरोप में आपके घर के नीचे तक आपको बस छोड़ जाती है कोई भी. ऑन द अदर हैंड इफ़ यू गो टू यूएसए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत वीक है. उसका कारण क्या बताते हैं? बताते हैं कि जनरल मोटर्स और फोर्ड की इतनी स्ट्रॉन्ग लॉबिंग कल्चर रहा है वहाँ पे कि उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट डेवलप ही नहीं होने दिया. उनको था कि हम अपने गाड़ियाँ बहुत सस्ती बेच देंगे, पीपल शुड बाय आवर कार्स, एंड दे गॉट दी पॉलिसीज मेड इन सच अ मैनर दैट everyone in USA, you remember, अब तो क्या है ना, पूरी दुनिया में लोग गाड़ियाँ खरीदने लग गए. Even in 90s people used to say that in USA everyone has a car, and the like normal people in other countries including India and especially India, they used to feel so surprised कि यार how is this even possible, कि how does everyone has so much money. It wasn't about that only. Not only people had so much money, but the cars were so affordable. They were made, the policies were like made in such a manner that everyone could buy a car instead of going through the public transportation. तो कॉर्पोरेट ग्रुप्स के पास में रहता है. फेडरल पॉलिटिशियंस तो ऑफ कोर्स उनके पास तो पावर रहेगी. फिर टॉप मिलिट्री लीडर्स, जैसे हम बोलते हैं कि वॉर इकोनॉमी जैसी वर्ड्स यूज़ होते हैं, फ्रेजेस यूज़ होते हैं. इसमें क्या है कि बड़े बड़े मिलिट्री लीडर्स हैं, जिसको हम बोलते हैं ना डीप स्टेट जैसी चीज़ें आपने सुनी होंगी, कि बड़े बड़े मिलिट्री लीडर्स हैं, उन्होंने अपने हिसाब से सिस्टम को चलाना है. दे एक्सरसाइज गुड अमाउंट ऑफ पावर एंड दैट शोज. एलिटिस्ट पर्सपेक्टिव क्या बोलता है कि स्टेट क्या है? स्टेट is like this power instrument wherein the power lies among some elite groups, and according to C. Wright Mill among these 3 groups. ठीक है. दूसरा हमारे पास आता है प्लूरलिस्ट पर्सपेक्टिव. इसमें जो स्कॉलर का आप नाम लिख के आओगे वो है रॉबर्ट डाल. ओके, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि यार जो सरकार है उसमें पावर जो है वो कहाँ रहती है? पॉलीआर्कीज या ओलिगार्कीज या पॉलीआर्कीज. इसका मतलब क्या है? ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये 2-3 जगह हैं जहाँ पे सरकार के पास में पावर है. पावर किसके पास में है?
ये बोलते हैं कि इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं सिस्टम में, मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस, उन सब के पास थोड़ी 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 पावर है, और इस तरह से पावर इज पावर इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय मैनी। ओके, पॉलीयार्की का मतलब, पॉली मीन्स मैनी, ठीक है, तो पॉलीयार्की का मतलब होता है कि बहुत लोगों के पास में मिलके पावर है, और दिस इज हाउ दिस स्टेट इज फंक्शनिंग। कहने का भाव क्या है कि मान लो कुछ प्रेशर ग्रुप्स हैं, कुछ लॉबीज हैं, कुछ बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कोई बड़े, अगर इंडिया की बात करें तो पावर कहाँ है, स्टेट कहाँ है लाई कर रही है, तो हम बोलेंगे कोई बहुत बड़े प्रेशर ग्रुप्स हैं, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सरकार है, कुछ बड़े बड़े इंडिविजुअल्स हैं, कुछ कॉरपोरेट्स हैं, कुछ मिलिट्री लीडर्स हैं। इस तरह से पॉलीआर्क है, सरकार इन सब के पास, सरकार में इन सब के पास पावर है। लेकिन उसके बाद में रॉबर्ट डाल ने अपना ना नैरेटिव चेंज किया था, और उसके बाद इन्होंने बोला था कि यार एक्चुअली यूएसए इज नॉट अ केस ऑफ पॉलीआर्की बट इट्स अ केस ऑफ डिफॉर्म्ड पॉलीआर्की। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलीआर्की एंड डिफॉर्म्ड पॉलीआर्की? According to deformed polyarchy, yes, power lies with everyone, but the greatest amount of power lies with the corporate sector. जो बुर्जुआ क्लास है, जो रूलिंग क्लास है, उनके पास सबसे ज़्यादा पावर है। नाउ वन मे फील कि यार ये तो मार्क्सिस्ट बात है, तो ना, यू कीप इन माइंड दैट प्लूरलिस्ट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम मार्क्सिस्ट। कैसे? मार्क्सिस्ट ये मान के चलते हैं कि भाई पावर है ही कॉर्पोरेट सेक्टर के पास, और बाकी सब कुछ तो सुपर स्ट्रक्चर है। यू रिमेंबर हमने कार्ल मार्क्स, ग्रामसी सब किया था, वो क्या बोलते थे कि जिसके पास इकोनॉमिक पावर है दैट इज द कॉर्पोरेट सेक्टर, उसी के पास में पॉलिटिकल पावर है, उसी का रिलीजन है, उसी का मीडिया है, उसी के प्रेशर ग्रुप्स हैं, उसी के एनजीओज हैं। ऑल दीज थिंग्स आर नथिंग बट अ रिफ्लेक्शन और अ सुपर स्ट्रक्चर, एंड द पावर लाइज विद द those who have economic power. On the other hand, pluralists agree only with one part, that yes, a good quantum of power lies with the corporate sector, but they do not believe in that state base superstructure kind of नैरेटिव की और किसी चीज़ की कोई एग्जिस्टेंस है नहीं, और कहीं पे कोई पावर है नहीं। ओके, सो दैट वाइंड्स अप आवर आइडिया कॉल्ड स्टेट इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी, और या नेचर ऑफ स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड चेंजिंग नेचर ऑफ स्टेट इन सोशलिस्ट सोसाइटीज। तो स्टेट इन सोशलिस्ट सोसाइटी, ये तो आजकल तो हमें और पढ़ना चाहिए इसको, क्योंकि बोलते हैं कि चाइना कुड हैव इन्फॉर्म्ड द वर्ल्ड इन अ बेटर वे अर्लियर। पूरी दुनिया को भाई तुम 2 महीने पहले बता देते, तुमने अपने फिगर्स छुपाए, जिससे लोगों को ये लगा 2-3 महीने तक यार चाइना में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जिससे वहाँ पे 2-3 हज़ार लोग अफेक्टेड हैं। लेकिन अब सबका ये मानना है कि चाइना ने बहुत ज़्यादा अंडर रिपोर्टिंग की है, और ऐसा हो सकता था कि अगर चाइना 2 महीने पहले बोल देती कि भाई हमारे हाल बुरे हो गए हैं, तो पूरी दुनिया अलर्ट हो जाती। पूरी दुनिया की आंखें खुली हैं इटली के बाद में कि यार इटली में क्या हो रहा है, फिर पता लगा चाइना से इटली में आया, तो फिर सबको घबराहट हुई है कि ये हमारे यहाँ पे भी हो जाता। सो वी कैन वेल सी कि सोशलिस्ट सोसाइटीज कैन बी वेरी क्लोज सोसाइटीज। ओके, सो अब हम यहाँ से करते हैं कि स्टेट इन सोशलिस्ट सोसाइटी। अब ना इसमें आपने एक चीज़ नोटिस की है, जब से मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको ना बड़े स्कॉलर्स के नज़रिए से ही बताई जा रहा हूँ कि ये बोलता है, ये बोलता है, ये बोलता है। हम अपने विचार नहीं लिख रहे बिल्कुल भी, और ये देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट। अदरवाइज तो आप और मैं बैठ जाते हैं एंड वी कैन लाइक डिस्कस एंड कम अप विद आवर ओन पर्सपेक्टिव, बड़ी जल्दी आ जाएंगे जितने मर्जी टाइम बैठे रहो। पर एग्जामिनर वो डिमांड नहीं कर रहा। एग्जामिनर आपसे पॉलिटिकल साइंस की स्टडी डिमांड करता है कि बेटा ये बताओ वेरियस पर्सपेक्टिव्स। ओके ओके, सो सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि विद द एक्सेप्शन ऑफ चाइना, नॉर्थ कोरिया एंड क्यूबा, एज सच हमारे पास में कोई बहुत ज़्यादा सोशलिस्ट स्टेट्स अब हैं नहीं। ओके, सोशलिस्ट पैटर्न हो सकते हैं, जैसे कि इंडियन सोसाइटी में देयर एग्जिस्ट अ गुड अमाउंट ऑफ सोशलिस्ट पैटर्न इवन टुडे, कि हम चाहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हो एंड सो ऑन, और ये सभी जगह पे ट्रू है बहुत सारी कंट्रीज़ के केस में। नाउ पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो सबसे पहले मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पर्सपेक्टिव, ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि
हमने कर ही लिए हैं दोनों थिंकर्स। आपको पता है कि ये बोलते हैं कि यार कैपिटलिस्ट सोसाइटी क्या है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में तो भाई डिक्टेटरशिप ऑफ बुर्जुआ चलती है, जो उन अमीर को सही लगता है। आइडियाज ऑफ द रूलिंग सोसाइटी बिकम द रूलिंग आइडियाज ऑफ द सोसाइटी, ये बोलते हैं। लेकिन जब सोशलिस्ट स्टेट बन जाती है, व्हेन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, वो कौन कंट्रोल करता है उसको? स्टेट, सेंट्रलाइज स्टेट, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड एंड टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी। उस तरह से जब हम सिस्टम बना देते हैं तो क्या होती है? डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिया। एक गरीब आदमी की डिक्टेटरशिप होती है। जब गरीब आदमी की डिक्टेटरशिप होती है तो फिर गरीब आदमी किसके लिए काम करता है? ही वर्क्स इन द इंटरेस्ट ऑफ मेजॉरिटी, क्योंकि मेजॉरिटी तो गरीब है। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, स्टेट इज एसेंशियली अ क्लास इंस्टीट्यूशन। देयरफॉर when the state is being controlled by the proletariat class, then it becomes it exhibit the features of dictatorship of proletariat, and eventually it turns out to be more democratic than any capitalist society, and then state starts working in the interest of majority. Okay, but western scholars इससे agree नहीं करते, to some extent, like to great extent rightly so. Okay, जैसे for example हना अरेंड, कार्ल पॉपर, ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं दीज आर क्लोज्ड सोसाइटीज, दीज आर टोटलिटेरियन सोसाइटीज। ओके, ये बोल रहे हैं कि आपके आयरन कर्टन के पीछे हो क्या रहा है किसी को पता भी नहीं लगता। इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेट बना देते हैं कम्युनिस्ट, इंडिविजुअल के पास इतने कम राइट्स रह जाते हैं। यू सबजुगेट एन इंडिविजुअल अंडर द स्टेट, इन द नेम ऑफ स्टेट people kind of, just they have to give in all their rights, and eventually it turns out that you have made the biggest big boss kind of a state in the country. Okay, so this is the western scholars perspective. elitist scholar क्या बोलते हैं? तो वेस्टर्न स्कॉलर को अगर हमने वो करना हो, कंक्लूड करना हो, तो हम बोल सकते हैं कि वेस्टर्न स्कॉलर से दैट इन द सोशलिस्ट सोसाइटीज it is not the dictatorship of proletariat, but it's actually the dictatorship of communist party. Okay, elitist scholars क्या बोलते हैं? elitist scholars, जैसे कि सी राइट मिल हमने किया था, उनका एक नरेटिव है जिसको हम बोलते हैं कि ओलिगार्की इज द आयरन लॉ। वो बोलते हैं चाहे भाई साहब आप सोशलिस्ट स्टेट बना दो, चाहे डेमोक्रेटिक स्टेट बना दो, चाहे कैपिटलिस्ट स्टेट बना दो, कोई बना दो, एलिटिस्ट फील करते हैं कि कुछ चुनिंदा खास लोग हैं, पावर हमेशा उन्हीं के पास रहती है। ओके, पावर हमेशा कुछ चुनिंदा खास लोगों के पास रहती है। तो ओलिगार्की इज द आयरन लॉ, मतलब कि वो हमेशा ट्रुथ है, ये हमेशा सच रहेगा। चाहे आप चाइना देख लो तो गिने चुने कुछ 50-100 लोग हैं जिनके पास पावर है, चाहे आप स्पेक्ट्रम की दूसरी तरफ यूएस से देख लो, वहां पे भी गिने चुने कुछ लोग हैं, पावर उन्हीं के पास में है। कहते हैं लेकिन सोशलिस्ट स्टेट में सिचुएशन वर्स है। ऐसा क्यों है? वो बोलते क्योंकि एटलीस्ट अमेरिका में लोगों के पास में ये ऑप्शन तो है कि यार वो गिने चुने 50 लोग जो हैं उनको चेंज किया जा सकता है। बट इन सोशलिस्ट कंट्रीज वी हैव मोनोलिथिक एलिट्स। एटलीस्ट इन वेस्टर्न कंट्रीज पीपल हैव चॉइस अमंग एलिट्स, कि ठीक है यार मेरे को ना, जैसे इंडिया की बात करें कि यार गिने चुने से लोग हैं जिनके पास पावर है, मेरे को ना मोदी नहीं पसंद, अमित शाह नहीं पसंद, इन्हीं के पास में पावर है, नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू गिव चांस टू से राहुल गांधी। ओके, एटलीस्ट मेरे पास ये थ्योरेटिकल पावर तो है। पर चाइना में तो वो जी जिनपिंग ही है, बस वही है, वही था, वही रहेगा। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इन सोशलिस्ट सोसाइटीज अथॉरिटेरियनिज्म एग्जिस्ट। ओके, इससे क्या होता है? इवेंचुअली लोग डिससेटिस्फाइड होते हैं। द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म इन ईस्टर्न यूरोप एंड फॉर्मर यूएसएसआर इज अ टेस्टिमनी टू दिस फैक्ट दैट state becomes so totalitarian that people one day they just give up. Okay, so this is how elitist scholar define the state in the socialist society. So this winds up our this topic, characteristics and changing nature of state in socialist society. हमारा अगला टॉपिक है nature of state in industrial developing societies. Okay, so nature of state in industrial developing societies, for example, India. Okay,
चलो इसके ऊपर भी ना बहुत स्कॉलर्स ने अपने विचार रखे हैं। द फर्स्ट वन, रिग्स। बड़ा ही मतलब मेरे को ना कभी कभी इतनी हैरानी होती है कि जैसे यही लगा लो, फ्रेड वॉरेन रिग्स ने, लोगों ने ना 50-50 साल पहले इतनी सही बातें बोली हुई हैं कि आपको लगता है कि हाँ यार इनमें बहुत दिमाग रहा है। फॉर एग्जाम्पल रिग्स बोलते हैं, कहता है कि यार ये जो इंडिया जैसी सोसाइटीज़ हैं, दे आर गोइंग टू बी दी प्रिज्मेटिक सोसाइटीज़। व्हाट डज दैट मीन? कहते हैं कि यार यहाँ पे ना, मतलब अगर आपको लेमन टर्म्स में बताऊँ तो, कि मतलब इन इन प्रिज्मेटिक सोसाइटीज सम एरियाज, जैसे जैसे ओके, आराम से सुनो, कि प्रिज्मेटिक सोसाइटी में ऐसा होगा कि मॉडर्न और ट्रेडिशनल सिस्टम एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। इसका एग्जांपल आजकल में देख लो कि हमारे यहाँ पे मेडिकल में ही अगर हम देखें तो इंग्लिश मेडिसिन, एक से एक दिन आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो कि इंडिया ने नैनो टेक्नोलॉजी की कोई सर्जरी कर दी इंडियन डॉक्टर्स ने। दूसरे दिन आप पढ़ते हो कि बाबा रामदेव ने योग लगाया कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन का, और उसमें ना लाखों लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। सो यू हैव इंग्लिश मेडिसिन एंड ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक मेडिसिन। यू हैव ग्रेट साइंटिस्ट, इंडिया में पता लगता है कि ये वाले पार्टिकल के ऊपर काम हो रहा है, ये वाली लैब बना दी है, ठीक है, लार्ज हार्ड्रोन कोलाइडर बनाना है इंडिया ने एक दिन, ऐसे वाला। दूसरी तरफ पता लगता है कि इतना ज़्यादा सुपर नेचुरल है, किसी ने जी बलि दे दी जानवर की, इंसान की, ऐसा वाला भी साथ में ही चल रहा होता है। या फिर न्यूज़पेपर में पढ़ो तो पता लगता है कि वुमेन ऑफिसर है कोई, उसको गैलेंट्री अवार्ड मिल गया। और दूसरी तरफ पता लगता है कि लोगों ने ना ऑब्जेक्ट किया क्योंकि कोई लेडी गाड़ी चला रही थी, बस ड्राइवर लेडी थी, तो लोगों ने ऑब्जेक्ट करना शुरू कर दिया। सो दीज काइंड ऑफ सोसाइटीज, दे आर कॉल्ड प्रिज्मेटिक सोसाइटीज। तो इनकी स्टेट कैसी होगी? स्टेट भी ना बड़ी प्रिज्मेटिक होगी। स्टेट में भी पावर जो है वो अलग अलग तरीके से डिफ्यूज्ड होगी। वो ट्रेडिशनल वो भी होंगी, लॉयल्टीज़ भी होंगी लोगों की, पैरोकियल लॉयल्टीज़ भी होंगी, और मॉडर्न तरीके से भी होंगी। दूसरा हमारे पास हम करते हैं अब गुनार मिडल। गुनार मिडल का हमने आइडिया देखा था सॉफ्ट स्टेट का, मैंने बोला था थोड़ी देर में आपको अच्छे से समझाऊंगा। वो क्या है, मान लो इंडिया में सिंपल सी चीज़, सरकार कोई लॉ बनाती है। इंडिया, आपने ना बड़ी बार लोगों को सुना होगा, कोई बंदा सड़क पे अगर किसी को बोले ना, अरे यार आप ये ऐसे क्यों कर रहे हो, या कोई भी किसी को भी कोई अच्छी सी बात समझाए, आगे से बोलते हैं ओ भाई ये इंडिया है, यहाँ पे ऐसे होता है, ऐसा क्यों? या आपने बड़ी बार सुना होगा कि कोई बंदा बोलता है आप ऐसे करोगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। वो अपनी जगह पे ठीक होता है, उसको लगता है मैं पुलिस को बुलाऊंगा, तो उसको आगे से जवाब क्या मिलता है? हाँ भाई बुला ले, बुला ले। ठीक। इसका मतलब लोगों को लगता है कि स्टेट आएगी तो अपनी जो वो है जो उसकी पावर है, जो उसके लॉज बने हुए हैं, उसको अथॉरिटेटिव तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करवा सकती स्टेट। स्टेट बिकम्स वेरी सॉफ्ट टुवर्ड्स दोज हु डू नॉट फॉलो द रूल्स। इंडोनेशिया और इंडिया का एग्जाम्पल देखिए, गुनार मिडल इनको बोलता है सॉफ्ट स्टेट, एशियन ड्रामा। ठीक। देन वी हैव सैमुअल पी हंटिंगटन। वो बोलते हैं कि इन कंट्रीज में क्या है, सरकारों का पॉलिटिकल डीके है, लोग पॉलिटिसाइज होते जा रहे हैं, सरकारें अपने आप को उस हिसाब से वो नहीं कर रही हैं, अडॉप्ट नहीं कर रही हैं, और उससे क्या हो रहा है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं हो रही है, नेशन बिल्डिंग नहीं हो रही है, सेकुलराइजेशन नहीं हो रही है, हो क्या रहा है, पॉलिटिकल डीके। इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रही है, अर्बनाइजेशन नहीं हो रही है, पर हो रहा है पॉलिटिकल डीके। और वेस्टर्न स्कॉलर्स इन जनरल क्या मानते हैं कि नेचर ऑफ स्टेट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज कैसी है? तो अगर हम एक बार दोबारा रिवाइज करें तो रिग्स के हिसाब से प्रिज्मेटिक सी है ये यहाँ पे स्टेट, गुरनार मिडल के हिसाब से सॉफ्ट स्टेट है, सैमुअल पी हंटिंगटन के हिसाब से डेवलपिंग सोसाइटीज में पॉलिटिकल डीके हो रहा है, लोगों का धीरे धीरे फेथ उठ रहा है सरकारों से। वेस्टर्न स्कॉलर्स इन जनरल मानते हैं कि जो ये डेवलपिंग सोसाइटीज़ हैं, यहाँ पे क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी है, पीपल थिंक दैट मोस्ट ऑफ द स्टेट्स आर फेल्ड। पाकिस्तान का एग्जांपल ले लो या बहुत सारे एग्जांपल्स ले लो, तो ऐसा लगता है कि फेल्ड स्टेट है, पीपल आर स्लीपिंग अंडर द ब्रिजेस, पीपल आर स्लीपिंग अनफेड, भूखे लोग सो रहे हैं, 1-1% हेल्थ पे इन्वेस्ट हो रहा है और 18-18, 20-20% डिफेंस पे इन्वेस्ट हो रहा है, तो एजुकेशन का कोई हाल नहीं है। एंड इन जनरल दे फील दैट द नेचर इज़ वेरी disappointing that there exists a crisis of governability। ये तो कुछ हमने स्कॉलर्स के इंडिविजुअल ओपिनियन देखे। उसके बाद अगर हम देखें मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव,
ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज। तो वो क्या बोलते हैं, मार्क्सिस्ट बोलते हैं कि यार एक तो डिपेंडेंसी स्कूल है, वो बोलते हैं कि स्टेट्स अगर हम देखें इन अफ्रीका, इन लैटिन अमेरिका, व्हाट आर दे आर नथिंग बट क्लाइंट रिजीम्स, पपेट स्टेट्स हैं वो। दीज स्टेट्स हैव बीन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ बुर्जुआ क्लासेस ऑफ कोर कंट्रीज। कुछ कोर कंट्रीज हैं जैसे कि इजराइल, यूएसए, यूके, फ्रांस, डेनमार्क, जर्मनी। ये क्या है, इन पे डिपेंडेंट है ये डेवलपिंग नेशंस। फॉर एग्जांपल कोर कंट्री हो गई यूएसए और डिपेंडेंट हो गया पाकिस्तान। कोर कंट्री हो गई यूएसए, डिपेंडेंट हो गए बहुत सारे अफ्रीकन नेशंस। और ये जो हैं ये बस क्लाइंट है यूएसए के, ये सिर्फ उनके पपेट हैं। तो ये क्लाइंट कोर रिलेशनशिप चलता रहता है एंड दिस इज द नेचर ऑफ स्टेट इन द डेवलपिंग सोसाइटीज। दूसरे जो हैं वो है स्ट्रक्चर लिस्ट। इसमें अब मैंने आपको एक टॉपिक छुड़वाया था पिछले, उसमें मैंने बोला था हमजा अलवी का ओवर डेवलप स्टेट। तो हमजा अलवी एनालाइज द नेचर ऑफ स्टेट इन पाकिस्तान एंड दैट थ्योरी कैन बी अप्लाइड टू अदर साउथ एशियन स्टेट्स एज वेल इंक्लूडिंग इंडिया। So Hamza Alvi says that in these developing nations we find overdeveloped state as a colonial legacy। क्या मतलब है इस बात का वो बोलते हैं कि इन जो कंट्रीज है ना, वेस्टर्न कंट्रीज, इनमें ना थ्योरी और प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। ऑन द अदर हैंड इन नॉन वेस्टर्न कंट्रीज में मॉडर्न स्टेट तो है, पर देर एग्जिस्ट अ मिसमैच बिटवीन स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ये क्या ही मतलब बना, आराम से सुनो। इंडिया की स्टेट कैसी है, कहते जी बहुत मॉडर्न। कैसे? इंडिया की स्टेट बोलती है कि ठीक है लोगों के पास में राइट टू प्राइवेसी है। इंडिया की स्टेट बोलती है कि आर्टिकल 370 वो सेक्शन 377। इंडिया की स्टेट बोलती है कि 18 साल से ऊपर के बच्चों ने जहां शादी करनी है करे। इंडिया की स्टेट बोलती है इवन लिव इन रिलेशनशिप इज लीगल, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। पर क्या सोसाइटी ऐसा मानती है? सोसाइटी तो लिव इन रिलेशनशिप को उतना अप्रूव नहीं करती। अब आपने गिने चुने से आइलैंड्स नहीं उठाने ना कि आपने साउथ दिल्ली उठा लिया, साउथ बॉम्बे उठा लिया, चंडीगढ़ उठा लिया, बैंगलोर उठा लिया और बोला कि करती तो है, लिव इन में रहते तो है लोग। नो, इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस। सो सरकार इज वेरी मॉडर्न बट सोसाइटी इज वेरी ट्रेडिशनल। दिस मिसमैच, दैट मीन्स सरकार इज वेरी मॉडर्न, सोसाइटी इज ट्रेडिशनल। सरकार 2020 में रह रही है, सोसाइटी 1920 में रह रही है। ये जो 100 साल का गैप है, इसका मतलब स्टेट ज़्यादा ही डेवलप होगी सोसाइटी से। स्टेट इज ओवर डेवलप्ड कंपेयर टू द सोसाइटी। ओके, सो नाउ यू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ हमजा अलवी ओवर डेवलप्ड स्टेट। सो अगर अपने को लिख के आना है नेचर ऑफ स्टेट इन इंडस्ट्रियल डेवलपिंग सोसाइटीज, तो हम बस ये लिख के आएंगे। ये वाला जो टॉपिक है ना सारा कंपैरेटिव से रिलेटेड, इसमें ना मैं आपको पढ़ाई ऐसे रहा हूँ कि एक बंदे का नाम और एक लाइन, एक बंदे का नाम और एक लाइन। इसका रीज़न क्या है कि हमें मैक्सिमम जो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है वो आएगा आपको कि एक 10 मार्क कर आया होगा, उसमें आप जितना ऐसे ऐसे करके लिख के आ जाओगे ना, उससे आप एग्जामिनर को पता होगा कि दिस पर्सन अंडरस्टैंड्स द टॉपिक वेल। उसमें ना आपके पास बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव तरीके से आंसर लिखने का स्कोप नहीं रहेगा। तो आप जितना ऐसे लिखाओगे आप फायदे में रहोगे, इसलिए मैं आपको बस की वर्ड्स बताई जा रहा हूँ। ठीक है, सो दिस वाइंड्स अप आवर टॉपिक द नेचर ऑफ स्टेट इन इंडस्ट्रियल डेवलपिंग सोसाइटीज। अगले लेक्चर में हम करेंगे पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड सोशल मूवमेंट्स। ओके, एंड उसके बाद में ग्लोबलाइजेशन एंड दिस विल वाइंड अप दिस होल टॉपिक। उसके बाद में बस हमारा थ्योरीज रह जाएगा, थ्योरीज एंड थ्योरीज ऑफ IR। थैंक यू।